So now in this class we are going to discuss the kinetic theory of gases. Gas laws के बाद में we have already discussed Gram's law, all gas laws. उसके बाद है kinetic theory of gases. तो इसमें देखें ये मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ जिससे कि टाइम नहीं लगेगा. So postulates of the kinetic theory of gases are what? According to this theory, पहला postulate, first point of this theory, according to this theory, all gas is made up of tiny particles. सारे गैस छोटे छोटे particles के बने रहते हैं, which are known as molecules. उनको molecules कहते हैं. All molecules of gas are identical in size and mass. सारे molecules का size और mass same रहता है. तो ये पहला point है कि सारे gases वो किसके बने रहते हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स. और उन पार्टिकल्स को भी कॉल, उनको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल्स. और उनका साइज और मास सबका सेम रहता है. ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास. सेकंड जो पोस्टुलेट है कि मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज स्पेस with each other. The volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the volume of gas, that is the volume of container. Actually volume of the gas क्या रहेगा कि जिस कंटेनर के अंदर गैस को फिल किया हुआ है. तो as compared to the volume of container, volume of gas particle का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल है. So the volume occupied by the gas particle is negligible as compared to the volume of container. So, or we can say, just a moment, or we can say the volume of gas molecules का जो volume है that is negligible as compared to the volume of container. Volume of the gas is what? Volume of the container. After that we can see the next postulate is what? The force of attraction or repulsion among the molecules is negligible. तो यहाँ पर ये ideal theory है, that is for ideal gases, कि among the molecules of gases there is no force of repulsion और there is no force of attraction. दोनों ही force को negligible माना है as per the ideal condition. लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हम फिर रियल गैसेस में पढ़ेंगे. But according to this theory, the force of attraction or repulsion among the molecules are negligible. तो ये पॉइंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है because in the questions they can ask which of the following statement is incorrect or which of the following statements are correct, like that. In the following statements regarding the kinetic theory of gases, तो उस तरह के भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं. After that हम यहाँ पर देखें fourth postulate of this theory is what? The molecule of a gas are in constant random motion in a straight line. तो सारे molecule जो होंगे जैसे कि वो कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा और दे आर रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में दे आर मूविंग, but movement will be before collision, the movement will be in a straight line. So during the motion molecules collide with each other and with the walls of container. तो मोशन यानी कि मूवमेंट के ड्यूरिंग दौरान वो चाहे तो जो भी उनके रास्ते में आ रहा है, चाहे तो अदर मॉलिक्यूल है या वॉल ऑफ द कंटेनर, with that they will collide. The pressure exerted by the gas is due to these collisions. कि प्रेशर जो होगा कंटेनर के अंदर, whatever pressure is there, that is due to the collisions of molecules with the walls of container. तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ. फिफ्थ पॉइंट में देखें हम, collision of gas molecules are perfectly elastic.
Elastic means, perfectly elastic means that there is no loss or gain of kinetic energy. So that is, there is no loss or gain of energy or average kinetic energy. So average kinetic energy of the molecules remains same. However, the energy of molecules redistributed among molecules. वो हो सकता है कि when it is going to collide with other molecule, at that time it may lose some amount of energy, but again it will regain. So overall average kinetic energy of the molecules remain constant. तो ये फिफ्थ पॉइंट हुआ. तो here this is the constant average kinetic energy. This is more important point here. After that we can see, just a moment, इसको थोड़ा सा खत्म. Sixth point is what? Since molecules are moving in different directions, therefore their velocity and kinetic energy can be different with each other. तो सारे molecules का जो kinetic energy है वो कैसा रहेगा? वो different रहेगा. कुछ molecules का same हो सकता है because they are moving in different directions with different kinetic energy, but average kinetic energy will remain same. So since molecules are moving in different directions, therefore their velocity and kinetic energy can be different with each other, but average velocity and average kinetic energy remains constant at particular temperature. So kinetic energy or velocity of the molecules will depend only upon the temperature. वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस कंटेनर के अंदर है. Average kinetic energy. So this is the sixth postulate of this theory. After that, the next point is what? The average kinetic energy is directly proportional to the temperature. Average kinetic energy जो होगा, that is directly proportional to the temperature. तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ द वेलोसिटीज हैं, वो फिर हम यहाँ पे दिस इज द हेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. हियर वी कैन सी कि पहले फर्स्ट वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड, VRMS. इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम क्या? VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज द स्क्वायर रूट of the mean of squares of speeds of various molecules at a given temperature. यानी कि सारे molecules के velocity का स्क्वायर कर दे और उसका जो एवरेज है, उसका जो मीन होगा, that is called what? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रूट लिया है हमने किसका? स्क्वायर वेलोसिटी का जो मीन है, जो एवरेज है, उसका जो रूट होगा दैट इज कॉल्ड VRMS. ये इसका डेफिनेशन हो गया. तो जैसे हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जांपल, कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. m will remain same for all molecules, half mv3 स्क्वायर अप टू n ले लिया for n number of molecules. अब यहां पर हम देखें कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv स्क्वायर इंटू n, कैपिटल N. एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है एवरेज, वो क्या है? हाफ mv स्क्वायर एवरेज इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. That will become equals to half m1v1 square up to capital N, यानी that is the total number of molecules of the gas. तो यहाँ से क्या होगा? m कैंसिल हो गया हमारा, n इंटू v एवरेज आगे जाएगा, 2v कैंसिल हो जाएगा. So v average square will become equals to v1 square plus v2 square plus v3 square up to n number of molecules.
तो V एवरेज स्क्वायर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टू n डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो ये एक मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी आ गया। वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे देख लें हम, इसको मैं इसको रूट कर देता हूँ, दिस इज द रूट। तो VRMS क्या हो जाएगा, रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V क्यूब स्क्वायर अपॉन n। एंड इसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी वो VRMS बराबर होगा किसके, 3RT बाई m, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। यहाँ पे ये बात तो ध्यान रखना है कि R की जो वैल्यू है हमें वो जूल पर केल्विन पर मोल में लेना है। m इज द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो इसको ग्राम में हमें चेंज करना पड़ेगा जब भी हम VRMS मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द SI यूनिट kg। ये यहाँ पे पॉइंट हमको बहुत ही ध्यान रखना है। अब देखें VRMS, क्योंकि हमें ये पता है कि फॉर वन मोल ऑफ गैस PV इक्वल्स टू क्या है, RT के, क्योंकि यहाँ पे हम PV इक्वल्स टू RT है फॉर वन मोल ऑफ द गैस। तो RT की वैल्यू वी कैन रिप्लेस बाय PV, then we will have this equation 3PV by m, or again because mass upon volume क्या होता है, डेंसिटी। तो ये इक्वेशन और कैसे लिखी जा सकती है कि दैट इज VRMS इक्वल्स टू रूट 3P by D। P इज द प्रेशर, प्रेशर का भी यूनिट हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, वो प्रेशर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? पर केल्विन समथिंग यहाँ पर देखना पड़ेगा। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल क्या है, m इंटू जी। क्या इसको यूनिट बना लेते हैं हम, P इक्वल्स टू क्या है, P इक्वल्स टू mg बाई एरिया। तो m इज द kg, g इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वी कैन डायरेक्टली कॉल इट यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज P इक्वल्स टू सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये सारे जो पॉस्टुलेट्स है वो हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो डायरेक्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं। P इक्वल्स टू क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो P इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 n इज द नंबर ऑफ total number of molecules, m is the mass of one molecule upon V into V square. So where pressure is in Newton per meter square and total number of molecules, m is the mass of one molecule, V square is the average square velocity of each molecule, and this capital V is the volume in meter cube. 1 meter cube equals to 1000 ml. तो ये देख ले, so Newton, and now this equation will become equals to what, nm v square equals to 3pv. So for 1 mole of the gas, n will be equals to na, or na into m, small m, na into small m क्या हो जाएगा, molecular weight of the gas. So equation can be used for 1 mole of the gas molecules. तो क्या हुआ हमारे पास में कि 1 मोल को हमने यहाँ से कैपिटल M में कन्वर्ट कर दिया, V स्क्वायर इक्वल्स टू 3PV, एंड मॉलिक्यूलर वेट M इक्वल्स टू व्हाट, M इनटू Na। आई थिंक ये सारे सब लोगों को पता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो mv स्क्वायर इक्वल्स टू 3pv एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 3pv बाई m। तो ये इसका डेरिवेशन फ्रॉम काइनेटिक
गैस इक्वेशन से। तो VRMS इक्वल्स टू 3PV/m, और सेम थिंग और क्या है हमारे पास कि VRMS इक्वल्स टू व्हाट, √3RT/m। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। एंड V स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पहले पता ही हमें V स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये क्योंकि ये एवरेज है, V एवरेज है बेसिकली। अब सेकंड वन इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो नॉर्मल एवरेज आएगा स्पीड्स का ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो V एवरेज बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू n मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N मींस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। V एवरेज विल बिकम, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8RT/pm। अगेन m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो लेंगे हम वो ऑलवेज केजी में ही लेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए केजी के अंदर। आफ्टर दैट द थर्ड स्पीड इज नोन एज व्हाट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। This is called VMP. It is the speed possessed by maximum fractions of molecules. क्योंकि जो गैस के अंदर जो कंटेनर है, जो कंटेनर है उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव डिफरेंट स्पीड्स। तो जिसमें से जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा, जो ऑलमोस्ट सेम होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, दिस इज कॉल्ड most probable speed. So it is the speed possessed by maximum number of molecules at a given temperature. इसकी वैल्यू क्या होगी, VMP इक्वल्स टू √2RT/m। ये किसके बराबर हो जाएगा, √2RT/m। और यहाँ पर इसमें रिलेशन तीनों के अंदर, among all three, this relation is also important, VMP versus V average versus VRMS, और VMP is to V average is to VRMS। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:128:1.224। तो इन तीनों स्पीड्स में जो स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो VRMS होगी, उसके बाद V एवरेज होगी और सबसे कम VMP होगी। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद VMP विल बी हाईएस्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद VRMS विल बी लोएस्ट। ये हमें और आगे पता चलेगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से। तो VRMS इज टू V एवरेज इज टू VMP, और उल्टा करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1:0. ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों तरह के रिलेशन वो सवाल में पूछ लेगा क्वेश्चंस के अंदर। ही कैन आस्क बोथ टाइप ऑफ रिलेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ये रेशियो आप बाय हार्ट कर लीजिए, that ratio we have to by heart, important part I am writing this। अगेन देखें, ये ग्राफ है हमारे पास में मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स का। सो हियर वी कैन सी दिस इज द ग्राफ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो VMP, ये क्या है, डेल्टा n/n इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेल्टा n/n। तो VMP सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनकी स्पीड सबसे कम है। ये हमारे पास वेलोसिटी है, देखो दिस इज द वेलोसिटी। तो ये हमने अभी रिलेशन देखा था, VRMS यानी स्पीड सबसे ज्यादा है लेकिन फ्रैक्शन सबसे कम है।
मॉलिक्यूल्स हैविंग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर लीस्ट, लेकिन उनकी स्पीड सबसे ज्यादा है, ये इनका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है VMP का. So VMP is having the highest fraction, VRMS is having lowest fraction, and this V average is having. अब क्योंकि ये जो डेटा है बेसिकली ये बहुत सारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उन्होंने मैथमेटिक्स के थ्रू ये ग्राफ प्लॉट किया है. दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल वैल्यू एक्चुअली. Okay, so this is the through mathematical calculations they have used this on the basis of some practical data, experimental data plus mathematics. After that this is the speed. तो स्पीड किसका सबसे ज्यादा हुआ? VRMS. देखो यहाँ पर ये स्पीड सबसे ज्यादा इस वाले पॉइंट पर, यहाँ देख ले हम, at this point this speed is highest. After that ये कम वैल्यू हुई, इसके बाद ये, तो VMP is lowest. तो यहाँ से देख सकते हैं कि VMP smallest. After that V average, after that VRMS. ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है रेशियो इनका अगर देखें तो. लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो रेशियो है, ये आपको बाई हार्ट करना है. इसको बाई हार्ट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो हम वहां पे कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे थ्रू देयर फॉर्मूला. तो दोनों तरह का ऑर्डर आप बाई हार्ट कर लीजिए, दिस ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर, बोथ ऑर्डर्स यू हैव टू बाई हार्ट. तो क्या होगा कि उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा. VRMS इक्वल्स टू √3RT/m, V average √8RT/πm, and this is VMP equals to √2RT/m. After this we can see the next thing is what important features. अब इसके जो यहाँ से जो conclusion है मैक्सवेल थ्योरी का, important features of the Maxwell's theory, that is the Maxwell distribution of speeds. The fraction of molecules with very low and very high speed is very small. तो यहाँ पे ये देख लें हम, इस वाले ग्राफ में वेरी हाई स्पीड का जो फ्रैक्शन है बहुत कम है, और वेरी लो स्पीड का भी फ्रैक्शन कैसा है, बहुत कम है. सबसे ज्यादा जो फ्रैक्शन है वो किसका है? VMP का. तो ये पहला पॉइंट हुआ इस थ्योरी का. सेकंड पॉइंट इज व्हाट? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing higher and high speed first increases up to a peak. पहले वो बढ़ता जा रहा है और उसके बाद वो घटता जा रहा है, and then starts decreasing. तो हायर स्पीड का जो कर्व है कि पहले हायर स्पीड के लिए देखो स्पीड, यहाँ पे स्पीड बढ़ती जा रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद एक पॉइंट आया पीक कि स्पीड बढ़ती जा रही है लेकिन फ्रैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता चला गया. तो पहले फ्रैक्शन क्या है? with the velocity it is increasing, or after reaching a maximum value then it starts decreasing. फ्रैक्शन की बात, लेकिन वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है. तो इसलिए ये क्या है हमारे पास में? बेल शेप ग्राफ, बेल शेप, घंटी के आकार का ग्राफ कह सकते हैं इसको. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possess a peak. वो क्या है? VMP. VMP सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है जो पीक पर है, एंड स्पीड ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. दैट इज द स्पीड possessed by the maximum fraction of molecules is called VMP. इसके बाद क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स की स्पीड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम रैपिड, एंड कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ VMP आल्सो इंक्रीज. VMP की वैल्यू इंक्रीज करेगी, द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट
विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें पीक की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगा। ये जो ग्राफ जो है शिफ्ट होके इस तरह से आ जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पर दूसरा ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये देख लें। ये ग्राफ शिफ्ट हो गया हाई टेम्परेचर पर, T2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन T1। तो ये देखो ये ग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये T1 की वैल्यू है। तो T1 और T2 में अगर हम ये देखें कि VRMS का जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है VRMS का वो कम हो गया, लेकिन स्पीड ज्यादा हो गई यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण। पहले VRMS कहाँ था, यहाँ पर थी स्पीड। तो टेम्परेचर बढ़ा, when there is the increase in temperature, the rise in temperature increase the fraction of molecules with higher speed। हायर स्पीड के साथ भी फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। पहले हायर स्पीड के साथ T1 पर यहाँ पे था फ्रैक्शन, ये वाली वैल्यू, और T2 टेम्परेचर पर ये वैल्यू हो गई। आफ्टर दिस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस एरिया के अंदर जितना भी एरिया है इस कर्व के अंदर, वो सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ये अदर पॉइंट हो गया। तो इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट देखें कि VMP हायर मॉलिक्यूलर वेट के साथ VMP की जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन फ्रैक्शन ज्यादा है। दैट इज द फ्रैक्शन VMP of Cl2 is greater than delta N by N of VMP of N2। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, लेकिन स्पीड ज्यादा हो जाएगी, VMP की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये दूसरा ग्राफ हो गया। एक बार एनसीईआरटी के से भी आप लोग पढ़ के देखना। ये पेलोड है, पेलोड में बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ये देख ले हम कि ये सारे वेरी ऑल दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट टाइप के 4 स्टेटमेंट दे दिए तो वो यहीं से स्टेटमेंट उठाएगा, और उसमें ये पूछ लेगा अगर मल्टी करेक्ट है, मल्टी आंसर क्वेश्चन है, तो वो ये पूछेगा कि यहाँ पर which of the following are incorrect और which of the following are correct, या सिंगल चॉइस में क्या पूछेगा, which of the following is correct and which of the following is incorrect। तो all of these points are related to the kinetic theory of gases, and also go through the reading from NCERT। NCERT reading is also very very important। Is it clear to everybody? So now I am winding up the lecture। Bye to everybody।